You look like this, Rahul. उत्कर्ष, I want proper profile pic, जैसे ईशान ने लगाया है, जानवी ने लगाया है. But श्रेयस, साची, रावेश, विवेक, सकेत, तुम्हें प्रोफाइल पिक डालना होगा. From Monday onwards, I want profile pic of yours, where I can see your faces. हाँ, वरुण face I can see nicely. No, I have not started yet. I'm just talking. थोर है राहुल का. Oh, I don't know much about Avengers. अटेंडेंस क्या है? देखो, इट्स नॉट नेसेसरी बहुत पहले आएगा. अटेंडेंस तुम्हारा लेक्चर में ये स्क्रीनशॉट, जो भी जितने फेसेस नेम दिख रहे हैं ना, इसलिए स्पेशली हम वो नेम, अटेंडेंस आईडी फॉलोड बाय योर नेम. सो दिस स्क्रीनशॉट विल बी टेकन बाय आवर असिस्टेंट. They will enter anytime and they'll take the, mostly they'll enter now only and they'll take the screenshot. So this attendance is much important. That is also important, but that link, as you all are integrated, you will have IIT as well as college lectures. So that is the reason. पर हमें गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है that college lectures are every day. मतलब students का वो attendance जाता है 75%. So that is the reason every day you will get a link whether there is a lecture or not. If you get a link, you just click on it and mark your attendance anytime in that day. कभी भी कर लो, so it will be marked. Thank you, ma'am. And see, about 3 different links for 3 different lectures. Yes, we are using our personal ID only for because that Zoom is 40 minutes span, and teachers already one list has been shared in the students group and also parents group, which you have to keep star and keep on WhatsApp. That if there is a physics lecture, their personal ID and the password is there, and you can connect at that particular time which lecture is there. Right now it was maths, so you know that my link was there and password is maths. So you have to just join and you have to commit. Okay. So every time now link won't separately be sent. That standard will be there throughout the year. Next is, yes, do we have to copy that what is written in the board? It's completely your choice. It's not necessary because yes, exercise sums definitely you have to write it down. We will be doing exercise sums. I'll do few which I am not doing. That means that you have to do at home, practice at home. Okay, that will be good to keep a balance between IIT lectures as well as college lectures. But a few concepts which you know, you can just take a screenshot. No need to copy down or write it down and all that. Notes will not be as such provided because completely we will rely on textbook. We'll use textbook as government has said, strictly follow the textbook. So everything nicely detailed list is given, and rest we teach here. So there will not no need of that recorded lectures. But if any doubt, you know, you have our number, you have access easily. You can ask the doubt. Or theorem right now in class 11th won't be coming. Yes, जो theorem है page 4 पे, relation between वो radian measure and this. 11th we don't ask theorem. In 12th definitely kuch theorems will be there for boards, few won't be there. As and when we do lectures we will tell ये theorem board exam के लिए तो ये पढ़ना है. But 11th में एक भी theorem पढ़ना नहीं है. But yes, you have to read it out for yourself. And कभी ऐसे लगा क्या ये theorem नहीं समझा तो समझा दो, ऐसे बोल सकते हो तो I will एक्सप्लेन. बट ज्यादा करके हम थियरम और वो करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, सम्स ही करते. एज यू नो दैट वीक में 2 ही लेक्चर्स मिलते हैं और फिर सिलेबस होता है, तो हम वो डिटेल में नहीं जाते. तो थियरम नो नीड, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर. थियरम इज नॉट गोइंग टू बी आस्क, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर 1 रेडियन वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन. आई होप सारे क्वेश्चंस मैंने जो चैट में रीड किए. Hello, ma'am. यस यस तनिष. Ma'am, the screen is blur. ब्लर है, मैं थोड़ा आगे करती हूँ. जस्ट अ All सेकंड, right. जस्ट अ सेकंड. नाउ इज इट ओके? ऊपर खाली वो लाइट अगर आ रही है तो वो मैंने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट लिखा है. हाँ. ओके, और कुछ नहीं लिखा है. अच्छा. बाकी दिख रहा है. अच्छा लिसन, हाँ. एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1 आर्क ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब 1.2 एक्सरसाइज पढ़नी ही नहीं है तुम्हें.
और वो रिलेटेड सम्स ऑब्वियसली मिसलेनियस तुम्हारा सेल्फ स्टडी होता है, हम एक्सरसाइज के सम्स करवाते हैं। फिर एग्जाम के प्रिपरेशन के वक्त जब एग्जाम है तब तुम थोड़े मिसलेनियस और सॉल्व्ड एग्जांपल्स वो सब तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर एन एक्स्ट्रा सम, बट यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर टेक्स्ट बुक। कोई भी दूसरी टेक्स्ट बुक या एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मींस तुम्हारा मिसलेनियस और सॉल्व्ड एग्जांपल, ये ड्यूरिंग एग्जाम करना है। पूरा रेड्यूस पोर्शन का मैं पीडीएफ भेज दूंगी, बट अभी इतना सारा हम क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम फॉर्मेशन में है, वी आर फॉर्मिंग स्टूडेंट ग्रुप। फिर ओके मेरे 4 बच्चों के अभी भी गूगल क्लासरूम के लिंक मुझे नहीं आए, आई विल जस्ट रीड इट आउट। तो वो मुझे सेंड, वेदर दे हैव जॉइन आल्सो नॉट आई डाउट, तो दे हैव नॉट सेंड, सो आई वाज वेटिंग, बट बाय टुडे यू विल गेट द गूगल क्लासरूम। मतलब तुम्हारा जो जीमेल अकाउंट तुमने बनाया है उस पे तुम्हें एक इनविटेशन मिलेगा, तुम्हें सिर्फ ज्वाइन क्लिक करना है और तुम ज्वाइन हो जाओगे। और क्लास कोड और कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेक्चर्स तो जूम पे ही होंगे। गूगल क्लासरूम सिर्फ तुम्हारे ज्यादा करके असेसमेंट के लिए होगा। और फिर हर चैप्टर के बाद हम एक तुम्हें क्वेश्चन बैंक देते हैं, विच विल बी फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली फॉर एज एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, क्या तुम करो वो सॉल्व। So that you have to at your availability you will do that, and you will just it's just for you the extra practice। तो मिक्स सम्स हम देते हैं, तो वो अभी भी नहीं मिलेगा, थोड़ा और एक वीक चला जाएगा, बिकॉज अदर सेंटर्स टीचर्स एंड वी ऑल डिसाइड एंड देन द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दैट ऑल इज स्टिल टू बी डन। तो गूगल क्लासरूम सिर्फ असाइनमेंट्स और मटेरियल पोस्ट करने के लिए है, और किसी चीज के लिए हम यूज नहीं करेंगे। टीचिंग विल बी कंप्लीटली ऑन जूम। तो डोंट वरी, गूगल क्लासरूम थोड़ा मतलब संडे तक भी बन रहा है, मंडे तक हो जाएगा। तुम्हें सबको ज्वाइन खाली क्लिक करना है और तुम ज्वाइन हो जाओगे। जीमेल जिस फॉर्म में आपने बताया है उसमें नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है आदित्य? बाकी सबने बनाया है। मैम खाली कैपिटल लेटर नहीं आ रहा है, स्मॉल लेटर चलेगा चलेगा, स्मॉल चलेगा, ओके ओके दैट्स ओके, स्मॉल चलेगा। हमें सिर्फ नंबर और नाम से मतलब है। काफी ने स्मॉल में ही बनाया गया, स्मॉल स्मॉल विल बी ओके, स्मॉल इज ओके बेटा, प्लीज मेक इट। और मुझे भेज दो, जो 4 बच्चों ने नहीं किया अब तक, प्लीज मेक इट। नंबर क्या है? नहीं सिद्धार्थ, यस आई गॉट योर्स, बट अभी तक मैंने इनविटेशन भेजा ही नहीं है। मैं आई वाज प्लानिंग दैट सारे बच्चे के आ गए, देन आई विल वन बाय वन आई विल सेंड द इनविटेशन। इनविटेशन आएगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन आता है, अपना जीमेल खोलना है जो नया बनाया है तुम लोग ने, ये आईडी से तुमने बोला था, जो आईडी तुमने मुझे सेंड की है जीमेल आईडी, वो ओपन करोगे तो उसमें इनविटेशन आ जाएगा और ज्वाइन करना है। पर इनविटेशन तुम्हें by today or by tomorrow you will get, because I have also lot of other work, so I'm not able to send right now। कैपिटल में लिखो, स्मॉल केस में लिखो, इट्स ओके, कंप्लीटली चलेगा। तुम्हें जो तुमने बनाया है स्मॉल केस इज ओके। व्हेन आईडी इज मेड वो ऑटोमेटिकली स्मॉल लेटर्स हो जाते हैं ना, चलेगा चलेगा। कैपिटल जरूरी नहीं है, ओके हमें सिर्फ नाम और नंबर से मतलब है, बिकॉज व्हेन समथिंग इज असाइंड, जब तुम्हारा UT1 होगा और सब, तो वील कम टू नो ये बच्चे ने सबमिट किया है, तो इट्स ओके, देयर इज नो हार्म। खाली फॉर्मेट में होना चाहिए, अपर केस लोअर केस डजंट मैटर। ओके यस, मुझे सबके मिले, मैं सिर्फ 4 नाम जिसके नहीं मिले, आई जस्ट रीड इट आउट, आई हैव जस्ट मार्क्ड एंड केप्ट, which I have not got is only 4 students, that is ईशान, तूने बाद में करेक्ट करके भेजा क्या वो ऑर्डर खाली प्रॉपर? तो आयुष मोरे इज, आर यू देयर? आयुष मोरे, आकाश पाठक, वरुण कॉन्ट्रैक्टर एंड ईशान आई थिंक यू सेंड, पर मैंने उसको तुम्हें रीसेंड करने बोला है। तो आयुष इज देयर, दैट मीन्स ही इज नॉट अटेंडिंग। आकाश पाठक, because of these few careless and I can say those student, the work still remains pending for us also. Maximum student has read my message once and immediately they have sent, so Hello, ma'am. very good student, keep it up. But few student I had to remind them again, please send, by sending them separate message. Please student, we have also other work and 12th lectures and many other things. If we are putting some instruction and we expect some work to be done by you, because maximum thing will be spoon feeding, we are doing it, but that you should do it. You are just ignoring, that won't be allowed, because then separately I have to send those student messages कि अरे तुम्हारा Gmail ID भेजो,
दैट 10 स्टूडेंट, देन उनके आए, फिर भी ये 4 बच्चे हैं जो आयुष मोरे, आकाश पाठक और वरुण कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने स्टिल मुझे नहीं भेजे. Yes, who was speaking now? Yes, I will start now. Okay, now pay attention. Exercise 1.1. Determine which of the following angles are coterminal. You have to find whether the angles, ये all 1 mark sums है, तुम्हें सिर्फ या 2 marks maximum. You have to identify whether they are coterminal angles or not. तो क्या करना है? Coterminal angles means difference between two angles should be integral multiple of 360. So you can just write the, since you have bought the textbook, पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है. नोटबुक में खाली क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखो. क्वेश्चन 1A का सेकेंड सम. अब 360 और 3 है तो उनका सब्ट्रैक्शन करो, चाहे तो मॉड लेके करो या नहीं करोगे, दैट्स ओके. यू विल जस्ट फाइंड इट्स डिफरेंस. तो डिफरेंस क्या आएगा? I'll write with blue, you will come to know. You will say difference is whatever, second minus first या first minus second, that doesn't matter. So 360 minus 30, तो plus 30, that is 390. This is not a multiple of 360. तो तुम्हें खाली नीचे एक statement लिखना है. The given angles are not coterminal. Given angles are not coterminal. Is that clear? Exam में writing part समझो, step के marks है. Yes? Ma'am, do we have to Not answer clear? on mic? Do we have to answer on the Yes, mic? yes, you can unmute and no, you can answer on chat. And if you want, raise your hand या unmute करके, कभी कभी कुछ error है या नहीं समझा तो unmute करके बोलो, मिस ये वापस समझाओ. But if you are writing answers, मैं chat में बार बार देखूंगी, मैं बोलूंगी तुम लोग को please give me the answer yes or no. मैं first sum समझाऊंगी, बाकी sums मैं तुम लोग से ही expect करूंगी. तो अगर 4-5 बच्चे भी chat में डाल रहे हैं तो it is done, I will consider. Okay? तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. तुम्हें सिर्फ 2 लाइन लिखनी है. पहले सब्ट्रैक्शन दिखाओगे एग्जाम में और फिर लिखोगे, अगर वो मल्टीपल ऑफ 360 नहीं है तो यू विल से गिवन एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल बिकॉज इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360. यू विल से 390 इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 360, या ऐसे 360 मल्टीपल कुछ नहीं बता सकते. तो दैट इज द रीजन गिवन एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल. इज दैट क्लियर हाउ टू राइट? या दैट्स ओके मिहिर, नेटवर्क एरर की वजह से हो सकता है कभी कभी ज्वाइनिंग में. क्लियर? नाउ सेकंड सम आई वांट यू टू डू. सेकंड माइनस फर्स्ट करो या फर्स्ट माइनस सेकंड, दैट डजंट मैटर एट ऑल. उनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 360 आना चाहिए. तो तुम नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, पहले ये क्वेश्चन लिखोगे, फिर सबट्रैक्ट करो. 675 माइनस 405 कितना आता है? 5 माइनस 5 0, फिर ये 7 एंड 270 क्या आ रहा है? नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक. तो 10 8 कितना आ रहा है? 10 1080. यू नो, यस, दिस इज 4 टाइम्स या 2 टाइम्स 360 ना मैम 3 टाइम्स. 3 टाइम्स, ओके. 3 टाइम्स 360 वो लिखो. एंड देयरफॉर गिवन एंगल्स आर कोटर्मिनल. यू विल राइट दैट गिवन एंगल्स आर कोटर्मिनल. वेरी इजी सम्स. सो लास्ट वाला तुम लोग करो. We will do only 2-3 sums. Yes, I am getting. Yes, Saket, good. तुम लोग चैट में अपना आंसर्स डाल सकते हो. क्या मिस ये आंसर आया है या ये चैप्टर. अब नेक्स्ट वाला मुझे खाली yes और no में जवाब दो, whether they are coterminal or not. The last one, sixth one, whether they are coterminal or not. And if some concept is not, you are not able to understand, that also you can write in chat. I'll explain again. Yes, okay, right. 900 प्लस 900 या माइनस 900 करोगे तो भी चलेगा. मल्टीपल आना चाहिए. वो नेगेटिव आया वो उससे फर्क नहीं है. इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है मैंने, देखो. सो यू कैन जस्ट जॉट डाउन फ्यू पॉइंट्स. जब भी तुम्हें लगे क्या चलो इसका डेफिनेशन इसमें सिंपल लग रहा है तो ऐसे लिख देना है. ड्रॉ करके चेक करने की जरूरत नहीं है. ओके, आई होप एवरीवन हैज फिनिश्ड दिस. यस, करेक्ट राहुल, करेक्ट. नहीं, तनिष इज करेक्ट. राहुल, सिक्स्थ वाला क्यों नॉट कोटर्मिनल है? इट इज कोटर्मिनल. आई एम ओके. आई विल रिपीट श्रेयस. What I am saying, 2 angles are given. If you want to check, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, check whether it is coterminal or not. और ये सेम सम एमसीक्यू में भी आ सकता है. एमसीक्यू में ऐसे लिखा होगा, which of the following angles are coterminal, और 4 ऑप्शन दिए होगे. इमेजिन 4 ऑप्शन दिए होगे तो तुम्हें सबका डिफरेंस फाइंड करना है. आफ्टर डिफरेंस जो भी आया वैल्यू,
दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. 360 का अगर वो मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, देन वी से they are co-terminal angles. It is the definition. Actually co-terminal मतलब इनिशियल आर्म और उनका फाइनल टर्मिनल आर्म सेम होता है, तो वो ड्रॉ करने की, चेक करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टू डू इट विदाउट ड्रॉइंग इट. तो चेक करके अगर वो मल्टीपल आ रहा है, यू विल से यस दे आर को-टर्मिनल. नहीं आ रहा है तो यू विल से दे आर नॉट को-टर्मिनल. आई होप दिस इज ओवर. नाउ नो डाउट वी कैन गो टू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम ऑल्सो. now you are doing circular system. तो ऐसा नहीं है कि बस 90 180, काफी नेगेटिव एंगल्स और हाई वैल्यूज एंगल्स सब आएंगे. यू हैव टू जस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है ड्रॉ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स. एग्जाम में ड्रॉ के लिए नहीं पूछते हम लोग. अगेन ये एमसीक्यू में आएगा या 1 मार्क के लिए. डिटरमाइन द क्वाड्रेंट. तो मैंने थर्ड सम, फिफ्थ सम, 9th सम एंड 10th सम दिए. आई वांट यू ऑल टू राइट इन चेक कौन सा क्वाड्रेंट आएगा. क्वाड्रेंट देखो, ये 0, ये मैं एक बार बता देती हूँ, ये 0 है, 90 है, 180 है, ये 270 है. अगर समझो मैं 285 दे रही हूँ, तो 270 के बाद 285 आता है पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बोलना है. तुम्हें पता होना चाहिए दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो 90 का टेबल देखो ना, 360 ये कितना आता है, 9 4 जा 9 5 जा 450. तो ये नेक्स्ट एंगल 450 होगा यहाँ पे. फिर 450 समथिंग होगा, तो 450 और 480, 450 और 540 के बीच वो रहेगा, एंड सो ऑन इफ एंटी क्लॉकवाइज. पर अगर नेगेटिव है तो उल्टा जाना, नेगेटिव है तो ऐसे रिवर्स जाना है. तो मुझे क्वाड्रेंट्स लिख के बताओ. यस आमिर, फर्स्ट का पहले आंसर दे रहे हो सब लोग, पहले फर्स्ट का आंसर दे दो. हेलो मैम. यस मैम यस बेटा. आप जो सम्स दे रहे हो वो हम लोग अभी बुक में कर रहे हैं. जो बीच के सम्स इसके लिए जगह छोड़ना है या क्या करना है? जगह नहीं, बाद में करो. अभी स्कूल की तरह जगह वगह मत छोड़ो, सीधा बाद में करोगे. वंस माई टुडे ऑल द चैप्टर इज ओवर ना, उसके बाद एज अ रिविजन तुम जो नई सम्स की है ना वो कर सकते हो. तो दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस. जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है. और कुछ सम्स तो तुम टेक्स्ट बुक में ही लिख देना. आई डोंट वांट क्या वो होमवर्क के लिए अलग से लिखो. कुछ पेंसिल से टेक्स्ट बुक में ही क्वाड्रेंट लिख देना. ओके अच्छा. 420 मुझे काफी ने आंसर्स दिए हैं, विच इज करेक्ट. यू कैन सी ये 360 है और दूसरा 450 आएगा इधर 90 के बाद. 9 का टेबल देखो ना, तो इनके बीच 420 लाता है. तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. वेरी गुड. मैक्सिमम हैव आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड फिफ्थ का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 945 डिग्री. अभी 945 का पोस्ट करो मुझे. वेरी गुड गुड. Yes, Varun, Saket, third quadrant. Krishna, everyone is giving it. Good. This is third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट कैसे, ये राउंड राउंड करते जाओ ना. ये टेबल है तो तुम्हें पता है ये 360 है. 90 का टेबल देखो, 450 है. फिर ये 6 जा 540, 7 जा 630, ये 720 आता है. पर ये 720 से भी ज्यादा है. 720 के बाद 810 आएगा. 810 के बाद 900 आएगा. 9 10 जा वो इधर आएगा 900 और ये 990. तो 900 और 990 के बीच 945 लाई होता है. सो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट. -500 ये बोलो. चलो बताओ. -500 का बताओ. यहाँ पे उल्टा जाना है, ऐसे जाओगे तो 90 का ही टेबल बोलोगे. तो ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा और ये 270 होगा और ये 360 होगा. तुम्हें क्या चाहिए? 500. 360 के बाद 630 आता है. सॉरी 360 के बाद 450 और 450 के बाद 540. तो 440 और 540 के बीच यहाँ पे लाई हो रहा है. दैट मीन्स इट इज थर्ड क्वाड्रेंट विच मैक्सिमम हैव आंसर. वेरी गुड. ये थर्ड क्वाड्रेंट है. तो ये सब एमसीक्यू सम्स है और 1 मार्क है. थर्ड क्वाड्रेंट. वेरी गुड. जिसने भेजा है ईशान, आयुष, अभिषेक. गुड. ऐसा इंटरएक्टिव होगा तो मजा आती है. 10th सम -820. -820 कौन सा क्वाड्रेंट है? चेक करो एंड लेट मी नो. -820. आमिर चेक कर, एक बार वापस चेक कर. अभिषेक
You check your answer. It's incorrect. Yes, बाकी जो पोस्ट कर रहा है वो करेक्ट है. आमिर अभिषेक एक बार चेक करो वापस. Yes, very good. आदित्य, आयुष, सिद्धार्थ, साची, श्रेयस. राइट है. इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट आएगा. इजीली तुम ये प्लॉट करके 9 का टेबल करो, आ जाएगा. क्लॉकवाइज ऐसे जाना है. You know how the clock moves. Anti-clockwise, you have to go like this. चलो, let us move on to the next sum. Converting radian to degree measure and degree to radian. I'll not do much sums. दो sums करेंगे. Question 2, you have to convert angles. Degree में दिया. I'm not writing the entire question. Degree में दिया है, तुम लोग radian में convert करके दो. -132 degree. So वो conversion दिखाओगे. To convert degree into radian, you have to multiply by pi by 180. So इसका आंसर लिखोगे. This is 2 mark sums. तो इसका आंसर बोलो मुझे पाई के टर्म्स में. मैं सिर्फ 2 ही सम्स करती हूँ क्योंकि सिंपल है. 40 डिग्री 48 मिनट्स. अच्छा हाँ, लेट मी टेल यू दैट कंसेप्ट. एज एंड व्हेन मैं जब आती हूँ, तुम्हें पता है डिग्री का भी वापस पार्ट्स होते हैं एंगल वाइज. 1 डिग्री 60 मिनट्स. मिनट्स को एक डैश करते हैं और 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. तो ये एंगल का भी फ्रैक्शनल पार्ट है. ओके, सो ये 48 सेकेंड्स है. पहले इसको तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा. तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 40 डिग्री होगा और ये क्या होगा 48 अपॉन 60 करना पड़ेगा तुम्हें. तो तुम्हारा वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. और फिर वो डिग्री को तुम रेडियन में कन्वर्ट करोगे. तो कितना डिग्री आता है 48.60 48 अपॉन 60. यस, ये राइट है. -11 पाई बाय मैक्सिमम हैव आंसर्ड अपॉन 15. और प्लीज स्टूडेंट यहाँ पे सी लिखना मत भूलना. आई विल कट मार्क्स. अभी तो चैट में इट्स नॉट पॉसिबल, बट इन एग्जाम इधर सी लिखना होगा क्योंकि तुमने दिखाया है कि हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया है. तो रेडियन के लिए हम लोग सी लिखते हैं ऊपर. करेक्ट. ये 40.8 आता है डिग्री. ओके, ये 40.8 आता है क्योंकि 48 मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स इन एंगल. तो ये 40 ये पॉइंट में लग जाएगा. तो 40.8 डिग्री. सो 40.8 डिग्री उसको कन्वर्ट करो. अगेन 40.8 यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. तो टेल मी योर रेडियन मेजर. इसका रेडियन मेजर निकाल के बताओ. प्लीज यू चेक दिस. एक दो ने मेरे को गलत भेजा है. आई विल नॉट टेल द नेम बट जस्ट check the answers which I have written on the board. If it is incorrect, that means कुछ silly error किया होगा तुम लोग ने कैलकुलेशन में, क्योंकि कन्वर्जन में कुछ नहीं है. You have to just multiply by pi by 180. इसका आंसर 51 पाई अपॉन 225 आ रहा है. जस्ट चेक करो रेडियन. यस सकेत, करेक्ट है तेरा. देखो डेसिमल में मत रखो. नहीं, काफी का आंसर्स गलत आ रहा है. प्लीज चेक द आंसर अगेन. डेसिमल कभी भी हटा देना रहता है. पाई के आंसर्स तुम हमेशा फ्रैक्शन में ज्यादा करके देखोगे ऐसा फॉर्मेट में. इसको डेसिमल में मत कन्वर्ट करो क्योंकि इन बोर्ड स्टिक टू द स्टैंडर्ड आंसर्स जो टेक्स्ट बुक नीड होता है. तो आई प्रिफर दैट ओनली. डेसिमल है वो इनकरेक्ट नहीं है, बट डेसिमल हमेशा फ्रैक्शन में तुम लिख रहे हो पाई, तो यहाँ से डेसिमल हटा दो और रेड्यूस कर दो. मैम यू कैन कैंसिल दैट 51 by 225. फर्दर कैंसिल हो रहा है. किस में जा रहा है? हाँ 3 से. ये 17 में 3 से जा रहा है. हाँ. अच्छा 459. यस यस. तो प्लीज रेड्यूस करो. सॉरी आई डिडंट सी दैट.
कितना आता है 317 by 75 by 75. 75. हाँ प्लीज रेड्यूस इट, सॉरी रेड्यूस हो रहा है फर्दर तो डेफिनेटली रेड्यूस करना चाहिए। ये स्टूडेंट तो हम टेक्स्ट बुक आंसर्स पे कभी रिलाई नहीं हमेशा हो गए, और मैं ये कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग पे ही छोड़ती हूँ, तो जो मेजोरिटी का आता है वो आंसर। तो रिमेंबर दैट 51 पाई बाई 225 फर्दर रेड्यूस होता है, तो रेड्यूस पार्ट ही एग्जाम में लिखना, पर ऐसे इक्वल टू करके दिखाना दोनों। यस रेड्यूस इट, वेरी गुड। हाँ राइट है फिर ओनली फ्यू हैव रिटन, वो कुछ पॉइंट में और किसी ने इतने सारे स्टेप्स Yes. दिखाने हैं, स्टेप्स इतने सारे नहीं। अगर ये 2 मार्क का है ना तो ये तुम 40.8 डिग्री बताओगे, ये मल्टीप्लिकेशन बताओगे और फिर सीधा ये आंसर लिख दो, चलेगा। ये मत दिखाओ, सीधा ये लिख दो। 3 स्टेप, अभी जैसे यहाँ पे कन्वर्जन है, ये नहीं लिखोगे चलेगा। सी दिस, वही मैं बोल रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स। प्लीज ऑलवेज अपना एग्जाम में पेपर का मार्क्स देखना। अगर ये 3 मार्क का है तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देना, एक, पर यहाँ पे ये स्टेप नहीं दिखाना है। यहाँ से ये लिखो, मल्टीप्लिकेशन दिखाओ और सीधा आंसर लिखो, दैट्स इट। ओके, दीज आर द मिनिमम स्टेप्स यू विल रिक्वायर्ड फॉर अ 2 मार्क सम, और अ 3 मार्क सम भी उतना ही लिखोगे चलेगा, पर मोस्टली दीज विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। चलो अभी रिवर्स जाते हैं, मतलब दिस वाज डिग्री टू रेडियन, नाउ वील कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रेडियन टू डिग्री। क्वेश्चन 3 सेकेंड सम, -5 पाई बाई 3 रेडियन दिया है। यू नो रेडियन को उल्टा मतलब 180 बाई पाई से यू हैव टू मल्टीप्लाई सो दैट यू विल गेट द डिग्री मेजर। फिफ्थ वाला जो है, दिस वाज सम नंबर सेकेंड। टेन मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो कितना होगा 37। ठीक है, फिर मीटिंग एंड के बाद रीजॉइन मत करना, थोड़ा सा जो बाकी रह जाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। सिंस आई एम योर क्लास टीचर तो थोड़ा डिस्कशन हमारा अभी हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा टाइम जाता है, दैट्स ओके। यस, -300 डिग्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब -1/4 रेडियन है, तो अब एमसीक्यू 180 बाई पाई, इसको पाई में ही रखोगे आंसर तो भी चलेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय, तो ये आएगा -45 बाई पाई। बट यू अगेन इट डिपेंड्स, 1 मार्क का सम है तो इसको पाई में ही रखोगे, बट समझो ये सम एमसीक्यू में आ रहा है तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन रहेगी ना वो शायद पाई में नहीं रहेगी, वहां पे पाई की वैल्यू 3.14 डाली होगी। सो फिर अकॉर्डिंगली तभी डाल के कर सकते हो तुम लोग। राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग इट, दिस इज द आंसर यू विल कीप। बट इन केस एमसीक्यू में है 4 ऑप्शन है, जो इससे मैच नहीं होगा दैट मीन्स उन लोग 45 और पाई की वैल्यू 3.14 दे माइट हैव पुट और फिर निकाला होगा। ओके, सी 1 डिग्री 1 रेडियन इज 180 बाई पाई, तो तुम टेक्स्ट बुक में दिया है, तुम ये भी याद रख सकते हो। अगर जब 3.4 कर रहे, 1 रेडियन इज 180 बाई पाई डिग्री, सो पाई की वैल्यू अगर 3.4 पुट करते हो तो यू गेट 57.32 अप्रोक्सीमेट। तो इफ यू वांट यू कैन मेमोराइज दिस, तो जब भी सम्स आए तो ऐसा कुछ सम्स है -1/4, तो 180 बाई पाई के जगह तुम सीधा -1/4 मल्टीप्लाई बाई 57.32 कर सकते हो, और फिर जो आंसर निकालोगे उतना डिग्री मिनट्स में हो जाएगा। बट नॉट नीडेड राइट नाउ, एमसीक्यू की बात कर रही हूँ क्योंकि उसमें ऑप्शंस पे डिपेंड होगा। अच्छा, टेक्स्ट बुक में मिनट्स में बताया है, हाँ वो इसलिए ये मैं बता रही हूँ क्या, देखो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 3.14 ईयर, पाई की वैल्यू अगर 3.14 तुम पुट करते हो तो ये हो जाएगा, और फिर रेड्यूस करते हो तो ये 45/3.14 हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो अगर तुम्हें वैल्यू याद नहीं, और फिर इसको इवैल्यूएट करोगे। बट इफ यू मेमोराइज दिस वैल्यू, क्या 180 अपॉन पाई की वैल्यू है 57.3248 डिग्री, तो ये पेज टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यू विल इजीली एबल टू फाइंड। तो ये कन्वर्जन है उनका, मतलब ये डिवाइड करके ये अप्रोक्सीमेट 4 डिजिट है, बट तुम लोग 2 डिजिट ले सकते हो। सो 57.32 से इफ यू मल्टीप्लाई दिस 1/4 और जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। अब डिग्री से मिनट्स और सेकंड कैसे कन्वर्ट करना है वो नेक्स्ट हम सम में कर रहे हैं, तो दैट यू विल बी एबल टू डू इट। आई विल शो यू दैट। जो नेक्स्ट पार्ट है ना,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड। तो वो कन्वर्जन इधर समझ जाओगे तो ये सम एज अ होमवर्क तुम ले सकते हो और ट्राई करोगे कन्वर्टिंग इनटू डिग्री एंड मेजर, क्योंकि नेक्स्ट मैं बता रही हूँ हाउ टू कन्वर्ट इन डिग्री एंड मिनट्स एंड सेकेंड। जैसे तुम स्कूल में करते थे मीटर सेंटीमीटर का, वैसा ही है। क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स द फॉलोइंग एंगल्स। सो फर्स्ट सम is 183.7 ऐसे डिग्री। तो व्हाट यू हैव टू राइट, 183 प्लस 0.7 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको डिग्री में 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, सो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 183 डिग्री और बाकी रिमेनिंग मिनट्स पे कन्वर्ट करोगे। 0.7 इंटू 40 ये 42 आएगा। तो दिस इज ओनली आंसर 183 degree 42 minutes. So this is the way you convert it. Which pattern, Saket, you are asking? See, questions will be either MCQ में फॉर्मेट आए तो कन्वर्ट है, वरना 1 मार्क के लिए we don't ask for conversion. वो प्रीवियस सम में तुम उसको पाई में छोड़ सकते हो, -45/π डिग्री तुम लोग लीव कर सकते हो। जस्ट फॉर 1 मार्क वी डोंट नीड टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन। ओके, सो बट व्हेन इट इज आस्क्ड लाइक दिस एक्सप्रेस इन डिग्री मिनट सेकंड, तो ऐसे करना है। पर वही सम प्रीवियस वाला 2 मार्क के लिए आता है तो बेटर कन्वर्ट कर लो। तो तुम्हें 180/π का वैल्यू पता होना चाहिए। इट इज, आई जस्ट नाउ सेड 54 अप्रोक्सीमेट कितना आता है 57.32, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, नेक्स्ट सम हियर, चलो यहाँ पे वैसा ही सम है। यस मैम, ये हम लोग डिग्री में मतलब मिनट में आया, जब तक हमको डेसिमल में मिलेगा तब तक हम लोग उसको कन्वर्ट करते रहेंगे ना? हाँ, कन्वर्ट करते रहेंगे। यस, मैं नेक्स्ट सम वैसे ही बता रही हूँ। अभी तुम्हें क्या दिया है, 1/5 रेडियन दिया है, पर तुम्हें डिग्री मिनट्स और कन्वर्ट जो अभी मैंने, इसलिए मैं इधर करवाने वाली थी तो वहां पे नहीं किया। सी दिस इज 1/5, पहले तो रेडियन से इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल मैंने सिर्फ ये दिखाया है, बट फिर तुम्हें पता है ये 57 है, 57.32 समथिंग। और दूसरे डेसिमल एक्स्ट्रा भी तुम याद रख सकते हो। अगर 4 डिजिट कितना मिलता है, ये कितना मिलता है उसका आंसर मुझे लिखो। 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, 6 7 23, 5 4 जा 20, करेक्ट। एंड कितना आ रहा है 20, 32, 6 जा 30 और 4 जा 20, अप्रॉक्स दिस मच। क्या आ रहा है देखो ना, चेक करो। 465 आ रहा है। ओके, थैंक यू। 465, ओके, 11.465 डिग्री आया। तो व्हाट वील डू, 11, यस, जितना आता रहेगा ना वापस डेसिमल आएगा, उसको वापस पहले मिनट्स, पहले इसको ब्रैकेट करके मिनट्स ऐसे कर सकते हो। इसका डेसिमल आएगा तो वापस सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, पर वो सेकंड का फिर अप टू 2 नंबर्स ही ले सकते हो। ये तो 11 डिग्री हो गया, और ये मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है वापस, कितना मिनट्स आ रहा है। इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे बोल दो, मैं तुम्हारे आंसर्स के लिए। 465 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो रहा है, 27.9। 27.9, थैंक यू बेटा। 27.9 मिनट्स हो जाएगा ये। ओके, तो ये 0.9 को हम वापस सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस विल बी 11 डिग्री 27 मिनट्स, और इधर तुम ब्रैकेट में 0.9 इंटू 60 करोगे, 1674। 1674। हाँ, तो ये 11 डिग्री 27 मिनट्स 1674 सेकंड। 1674 या नहीं, इसको 9 6 कितना आ रहा है, आएगा ना, 54 ही आएगा ना। क्यों इतना ज्यादा करना है, 54 सेकेंड्स, दिस विल बी आंसर। यस मैम, यस बस हो गया। हाँ, तो दैट ओनली, जस्ट अप टू 2 डेसिमल इज मोर देन इनफ। 2 डेसिमल याद रख लो, ये मेमोराइज कर लो तो उतना टाइम बच जाएगा एग्जाम में। और अगर नहीं भी मेमोराइज करते हो तो इट्स ओके, तुम्हें फिर एग्जाम के टाइम 180/3.14 वो डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। बट आई विल सजेस्ट इसको मेमोराइज ही कर लो, अगर ऐसा कन्वर्जन आया तो। फिर सी लुक हियर, टू कन्वर्ट डिग्री टू मिनट्स, जो डेसिमल पार्ट है हम उसको 60 से वी मल्टीप्लाई, it will get converted into minutes. Again we get a decimal. If we don't get in decimal here, that will be the answer. But
Still again you are getting decimal, so you need to convert again in seconds, and that will give you 11 degree 27. See, MCQ is also 2 marks, or I told you the pattern also. So this can be a MCQ sum or a 2 mark sum, or sometimes 3 mark. It will depend who on the paper set. Okay, now everything, all the sums similar है. अभी word problems जैसा थोड़ा है, तो we'll go. I'll skip few sums जो बहुत ही simple है और direct है. हेलो मैम. I hope yes बेटा. मैम जैसे कि यहाँ पर 44 तो 54 सेकंड्स है, अगर ये भी हम लोग को डेसिमल में रहता तो इसके आगे क्या नहीं करते हैं हम लोग? तो नहीं करना है, तो फिर उसको राउंड ऑफ करके तुम ले लोगे. अभी समझो 54.5 Approx आया, लेंगे ना? अप्रोक्स लेंगे. अगर Okay. 54.56 आया तो 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो इसको 57 कर दो. 54 है तो ये 55 सेकंड्स ले लोगे. फिर वो Okay, डेसिमल नहीं करना रहता, तो फिर अप्रोक्स लेना है. करेक्ट. Okay, thank अच्छा, you. अभी सिर्फ 1 मिनट लेफ्ट है. कैन आई एक्सटेंड 5 मिनट्स? मेरा समझी कम हुआ, तो रिजॉइन करना पड़ेगा, या नेक्स्ट क्लास ही करूं, क्योंकि दूसरा लेक्चर भी है ना तुम्हें बाद में. यस, कभी ज्यादा करके मार्क्स के हिसाब से स्टेप्स लिखने पड़ते हैं. हाँ, नेक्स्ट लेक्चर आई विल गो स्लो, क्योंकि तुम्हारा ये स्टार्ट ही है. वील हैव वो ट्रिगो तुम्हारा काफी तुम्हें किया रहेगा, तो वहां पे मैं थोड़ा फिर ये कर दूंगी. आफ्टर दिस देयर आर ओनली नेक्स्ट क्लास तक तो मेरा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. तो दिस इज देयर. मैम सिर्फ 1.1 ही करना है एक्सरसाइज, और कोई नहीं आएगा? हाँ, और कुछ नहीं, डिलीटेड है. हम करते थे, बट इस साल के लिए वो ओमिट किया है. तो एज पर 1.2 मिसलेनियस सब डिलीटेड है? नहीं, मिसलेनियस का मैंने बताया. हाँ, ऑलमोस्ट सारे सम्स मिसलेनियस के डिलीटेड है. खाली 2 से 10, मतलब फर्स्ट और 11 दो ही सम है मिसलेनियस. ये चैप्टर बहुत छोटा है. इसमें से समझो अगर हम 3 चैप्टर रख रहे हैं तुम्हारे यूटी के लिए, तो इसमें से बहुत कम सम्स आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही छोटा है, तो इसका वेटेज भी छोटा हो जाएगा.